Hello, what's up, students, and welcome back to Luminary Academy. And today I'm back with a new video. In this video, I'll be teaching you class 10, chapter number 1, chemical reaction and equation. So, students, सबसे important बात ये है कि ये वीडियो के अंदर मैंने सारी definitions cover करी है और इसके अंदर जितने भी past papers के questions आए हैं वो सारे मैंने जितना हो सका है मैंने include किया है, जिससे आपको बहुत help मिलेगी. और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो definitely you will be like asking me for this PDF. So I'll be sharing the link of the PDF. So that you can download and you can write your notes and you can save it for the future. Okay, so exam ek saal baad hai, so I know you will recall, you need to recall after months, okay, for your examination. So this will help you definitely for your board exams. So please go through these videos and definitely share with your friends and also let them know that this video gonna help them for the board exam. Okay, students, so let's start the first topic, that is chemical reaction. Okay, so as the name implies, chemical reaction. You have seen in our day-to-day life that when we cook the food, okay, it converts into a different form, okay, and we cannot get the original food or original vegetables back from the food which we have cooked already. Okay, so that is a chemical change. We cannot get back the original reactants, right? So here, if we see, I have one matchstick. Okay, if I burn it, okay, if I light it, see, you can see this wooden part and there is some chemical which help it to burn, okay, which help it to light. If I burn it, can I get it back? Suppose if I burn it, so now it is lighted, okay. Now you can see that there is a gas which is releasing, there is a light, okay, so you can see the light also, and you can see the reaction which is a chemical reaction. And here we cannot get back the wooden stick of the matchstick back, okay, because this is burned now. So this is a chemical reaction, okay. So this is a chemical reaction and there is some gas also released, if you see the gas, okay. So this is a basically an example of chemical reaction, okay. So you can see many other chemical reactions, okay. Suppose if you have seen the rusting of iron. So here if we see this definition, first of all, whenever a chemical change occur, okay, means which cannot be reversed, okay. So this cannot be reversed, okay. In the simple word, we can say that any reaction which cannot be reversed, that such changes are called chemical change, right? So these changes cannot be reversed, first of all. Secondly, this brings some changes in the object or in the substance which are used for the chemical reaction. For example, changes kya honge? The food get digested in our body, okay. So after the reaction, the food get digested, okay. So we after that we cannot get the original product or reactants, right? Secondly, rusting of the iron. So if the iron get rusted, okay, rusting is basically when the iron object and or its surface, when it is come in contact with the oxygen, water, moisture, okay, or acid rain, which we generally see in the rainy season, okay, then the iron surface get oxidized, okay, because of the oxygen it get oxidized and it become iron oxide, okay. So this iron oxide is basically rusting. So this is a chemical change. We cannot get the original iron surface back, right? The original iron product back, right? So respiration, we see that if we see this reaction, many of the time you've seen C6H12O6, when it is in the presence of oxygen, is converted into CO2 plus H2O plus energy, right? Clear? So this is basically a chemical reaction, right? So this is a chemical reaction because glucose converts into CO2, H2O and energy, right? So respiration is also a chemical change. Rusting of iron is a chemical change. Food get digested in our body, that is also a chemical change. Burning of magnesium ribbon. I have made a video on this burning of magnesium ribbon. You can see this video in the, you can scroll the video in the playlist, or we can see in the videos given in my YouTube channel. Okay, so that is a chemical change because we cannot get the magnesium ribbon back. Okay, but this special thing about the magnesium ribbon is it burns with the white flame. Okay, students, so काफी easy है chemical reaction को समझना. Okay, now milk left at a room temperature during summer. Now you all know that milk is basically a product which has a lactobacillus bacteria, okay, and that bacteria basically get active when the temperature is if the temperature increases, they become active. So what we do generally, we generally keep the milk in the lower temperature or in the refrigerator, okay. So to
stop या to basically lower the growth of the bacteria, right? तो जितना टेम्परेचर कम होगा उतना बैक्टीरिया कम पैदा होंगे. ओके, सो इसलिए हम उसका टेम्परेचर को क्या करते हैं, सबसे पहले लोअर करते हैं. सो दैट इज द रीजन. ओके, वी डू नॉट कीप द मिल्क एट द लो टेम्परेचर. दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज. अब ये केमिकल चेंज कैसे, अगर हमने लो टेम्परेचर पे नहीं रखा तो वो क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप होंगे और वो मिल्क को क्या कर देगा, खराब कर देगा. ओके, जिसको बोलते हैं दूध फटना. तो यही एक रीजन होता है. नेक्स्ट, हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट. सो केमिकल रिएक्शन को पता कैसे पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है. तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, देयर इज अ चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द कलर. जैसे अभी मैंने मैचस्टिक बर्न करी थी, यू कैन सी द चेंज इन द स्टेट आल्सो एंड चेंज इन द कलर आल्सो, एंड देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ गैस आल्सो एंड चेंज इन टेम्परेचर आल्सो. सारी चीज मैंने आपको दिखा दी थी. चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है क्योंकि हीटिंग होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा. और मैंने, अगर आपने देखा होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाया था, तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. उसमें टेम्परेचर भी मैंने बताया था कैसे चेंज हो रहा है. यू कैन गो थ्रू द वीडियोस व्हेनेवर यू गेट टाइम. ओके, इट इज अवेलेबल ऑन माय चैनल. नाउ chemical equation. Now chemical reaction is a different thing, chemical equation is a different thing. So जो chemical reaction हम कर रहे हैं, suppose अगर हमने अभी for example अगर मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो वो बनेगी CO2. तो अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ, ओके, इफ आई एम राइटिंग दिस इन दिस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. क्योंकि हम एक इक्वेशन को शॉर्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, जिस बाय यूजिंग द एरोज एंड द प्लस साइन. ओके, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द साइंटिस्ट, क्योंकि अगर साइंटिस्ट इसको, अगर केमिकल इक्वेशन को बार बार वर्ड्स में लिखेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो मेन एम ये है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बनाते हैं. ओके, सो इट इज अ शॉर्टर वे ऑफ फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन यूजिंग सिंबल्स एंड एरोज, राइट. सो व्हाट इज द एग्जांपल हियर. नाउ एग्जांपल, you can see the example which is given here. When magnesium ribbon is burned in oxygen, it get converted into magnesium oxide. Okay, so यहाँ पर reaction दे रखी है. When Mg burns to O2 in the presence of O2, when Mg burns in the presence of O2, it will become MgO. So this is reactant and this is product, you can see here, and this is a symbolic representation of chemical equation. So this is a chemical equation, इसका symbolic representation होता है. अब chemical इक्वेशन का आपको मीनिंग समझ में आ गया. अब चलते हैं कि ये जो इधर वाला पार्ट है रिएक्टेंट्स, ये हमेशा अपन LHS में ही लिखते हैं. ऐसा बेटा कोई जरूरी नहीं है. अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Mg प्लस O2, एंड इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी प्रोसीड कर सकता हूँ. ओके, सो ये रिएक्शन ऐसे भी सही मानी जाएगी, करेक्ट है. सो ये ऐसे क्यों नहीं लिखी, बिकॉज क्या होता है बेटा, साइंटिस्ट ने एक रूल बना रखा है, वो जो फॉलो करते हैं हम वैसे ही फॉलो करते हैं. बट अगर हम इसके अगेंस्ट में जाएंगे तो दैट इज इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट. सो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, बट जनरली बुक्स में सीधा लिखा रहता है तो हम भी इसको सीधा यूज करते हैं, राइट. काफी इजी चीज है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं. तो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि नोट आपको करने की बात यह है कि रिएक्टेंट्स आर रिटन एंड ऑन द LHS साइड, मतलब कि दिस इज LHS, एरो के पीछे जो होता है उसको LHS बोलते हैं, राइट. दिस इज RHS, okay, and we use plus sign to add the two reactants. Similarly, the product are written on the right hand side with a plus sign between them, right. So काफी easy है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. अब फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी ऊपर वाली रिएक्शन की बात करते हैं. हमने अभी Mg लिया था और उसको ऑक्सीजन में क्या करा था, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था और वो बन गया था MgO, राइट. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैग्नीशियम है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, राइट. ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, राइट. एंड ये जो MgO बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म. तो वी जनरली राइट फॉर गैस वी राइट G, राइट. फॉर लिक्विड वी राइट L, एंड फॉर सॉलिड वी राइट S, एंड फॉर एक्वस, एक्वस मतलब होता है बेटा पानी. ओके, इट इज बेसिकली इन द एक्वस फॉर्म मीन्स इट हैज सम content of water, right. So this is how we used to represent the physical state of reactants and product. Now balancing chemical equation. बच्चों बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्यों करनी पड़ती है, पहले तो हम इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं. जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा, ये जो रिएक्शन है पीछे, यहाँ पर मैंने 2MgO लिखा था
N2Mg लिखा था यहाँ पर, N2MgO लिखा था यहाँ पर, और यहाँ पर O2 लिखा था। ये ऐसा क्यों हुआ? वाई आई हैव रिटन दिस? आपने 9th और 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ऐसे रिएक्शन को लिखते हैं, बट कभी इस पे लॉजिक नहीं गया होगा। बट आज मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा जाता है। बेसिकली एक लॉ होता है बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो जितना मास आपने रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले लिया था, उतना ही उसके बाद भी होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 में एक एक्टिविटी थी, उसमें वो गैस को स्केप नहीं होने देते, इसलिए वो कॉर्क लगाते हैं और उसका वेट करते हैं। वो तो वेट जब उनका मेजर करते हैं तो उनका वेट ऑलमोस्ट सेम आता है, बट अगर वो कॉर्क हटा देंगे क्योंकि गैस रिलीज होती है, ओके, तो उसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, so generally to know this logic, what we do generally is we generally follow the law of conservation of mass. So balancing chemical equation का मतलब ये होता है the total mass of the element present in the product of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant side. तो प्रोडक्ट में जितना मास है सपोज, उतना ही मास आपके रिएक्टेंट में भी होना चाहिए। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये कि जितना MgO का मास है, वो मास हमेशा Mg और O2 का दोनों का मास मिला के होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि O2 और Mg मिलाएं और MgO का मास कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो दैट मीन्स इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, राइट। सो हियर देयर इज अनदर डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स पहले यूज किए थे रिएक्टेंट में, उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस जो अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं। नेम द लॉ बेस्ड ऑन विच द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके, सो नेम द लॉ ऑन विच द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? इसको आपकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखवा दी, तो ये इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन के एटम्स को, राइट। तो यहाँ पर लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन में लिखा है Zn, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, ये सारे एलिमेंट, Zn एक एलिमेंट है तो मैंने यहाँ लिख दिया Zn। H2SO4, तो H एक एलिमेंट है, S एक एलिमेंट है, O एक एलिमेंट है, OSNO, राइट। इसके अलावा कोई एलिमेंट है नहीं यहाँ पर। तो जितने रिएक्टेंट में एलिमेंट है वही प्रोडक्ट में भी होंगे ऑब्वियसली। तो हमने क्या करा, एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड को हम मेजर करेंगे कि यहाँ पर कितने एलिमेंट है। यहाँ पर आप देखोगे Zn के कितने एटम है, 1 है। यहाँ पर Zn का भी 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 1 लिख दिया, राइट। अब यहाँ पर मैंने H2 के कितने एटम्स है, 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पर भी H2 के 2 एटम्स है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। ओके, ये टेबल बनाने का भी तरीका इजी होता है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड लिख के और एलिमेंट लिख दो, सारे एलिमेंट्स को आप लिख दो यहाँ पर, और जितने रिएक्टेंट साइड पे वो यहाँ लिख दो और जितने प्रोडक्ट साइड पे वो यहाँ लिख दो, राइट। फिर उसको बैलेंस करना होता है। अभी तो मैंने ऑलरेडी आपको बैलेंस करके बताई है, इसलिए बहुत ईजी लग रहा होगा आपको, बट मैं आपके सामने सॉल्व भी करूंगा, डोंट वरी। सो S यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर S कितना है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 दोनों तरफ हो गया। O यहाँ पर 4 है, O यहाँ पर 4 है, तो ये बैलेंस है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हाउ टू बैलेंस, अब इसको बैलेंस करना कैसे, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। इसको मैं वापस से लिख देता हूँ क्योंकि इसमें साइन लिखा हुआ है, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। ओके, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं वरना दिखेगा नहीं, बाद में प्रॉब्लम आएगी। सो CaOH whole twice, and this will give you CaNO3 whole twice 2 plus H2O। आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ओके। बट आपको यहाँ पर हाइड्रोजन 2 तो है, बट यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ये H इंटू 2 होता है ये, तो 2 इंटू H कितना होगा, H2, राइट। और यहाँ पर H कितना है, 1, तो और यहाँ पर H कितना है, 2। तो मुझे क्या होता है, जो ऑड वाला होता है, सपोज यहाँ पर ऑड वाला कौन है, ये ऑड है क्योंकि यहाँ तो 2 है, यही 1 है,
ये ऑड है तो यहाँ मैं 2 लगा दूंगा, मतलब मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, राइट। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चों, डायरेक्ट मेथड है। आप टेबल बना के भी कर सकते हो, बट मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा जिससे आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर 2 हो गया, तो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपको 2 लिख दिया मैंने, राइट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H2 है, ओके, यहाँ पर 2 ये, यहाँ पर 4 हो गए, तो मैं इसको, क्योंकि यहाँ H2 है, यहाँ पर H2 हो गए, तो यहाँ मैं इसको यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, डन। अब मैंने इसको 2 लिखा, तो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, ये हो गया 2, राइट। तो 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस और CaNO3 होल ट्वाइस और 2H2O, ओके। सो अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ, N कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर भी N, यहाँ पे N ऑलरेडी 2 है, ये और ये N2 है, राइट। तो ये तो N2 ही हो गया। फिर यहाँ पर O कितना है, O यहाँ पर देखो, O यहाँ पर 3 है और 3 2 6 होता है, तो O यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर O कितना है, तो O इंटू 2 कितना होगा, 2, तो यहाँ पर +2, मतलब टोटल O कितना है यहाँ पर 8 है, राइट। O अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 इंटू O इज 2 एंड 3 2 6, 6 + 2 8, तो यहाँ पर भी O कितना हो गया, 8 हो गया। अब मैं कैसे कर रहा हूँ आपको 1-2 क्वेश्चन बेटा देखना पड़ेगा, जब तक आप ये 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है मैं मानता हूँ, बट मैं अभी बहुत सारी, अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने बहुत सारी इक्वेशंस ले रखी है, इसको सॉल्व करूंगा मैं आपके सामने, सो डोंट वरी, आपको डरना नहीं है। 2-4 क्वेश्चन देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, पेशेंस रखोगे तो आएगा बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में हमेशा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते ही हैं कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ओके। ध्यान से देखते हुए चलो। सो O यहाँ पर आ गया है 2, तो मतलब O को बैलेंस नहीं करना है, तो मतलब H बैलेंस हो गया, N बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी N, O और H बैलेंस है। अब मुझे CA बैलेंस करना है, CA क्या है, ये CA, यहाँ पर भी CA, यहाँ पर भी CA, तो जनरली मतलब अगर अपन देखें तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लगेगा कि बैलेंस हुई है कि नहीं है। अब मैं इस इक्वेशन को वापस लिख रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर देखो आप, ओके, सो अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ, 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस एंड दिस विल गिव यू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो अब देखते हैं, अब चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, ओके। तो लेट्स सी कि ये सही है या नहीं। अब देखो यहाँ पर H कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी H 2 है, ये 2H दोनों काउंट होंगे तो 4H हो गए। यहाँ पर H कितना है, 2 2 4, तो मतलब H दोनों तरफ क्या है, 4 है, ये बैलेंस हो गया। अब N देखो, N यहाँ पर कितना है, अगर ये 2 है तो ये 2 सबके लिए है, ये 2 H के लिए भी, ये 2 N के लिए भी, ये 2 O के लिए भी, ओके। तो O के लिए कितना है, ये 3 जो है ना, 3 O 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 होगा, तो N कितना हो गया यहाँ पर, N देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया, N यहाँ पर अभी तो 1 है, तो N यहाँ पर 1 है, नहीं N2 है, क्योंकि N के आगे 2 लगा हुआ है तो ये सबके लिए 2 है, तो N2 है, तो यहाँ पर N2 है और यहाँ पर भी 2 है, देखो क्योंकि ये N है तो ये 2 सबके लिए होता है, ये 2 जो है, ये जो बाहर यहाँ 2 लिखा है, ये 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 2 6 होगा, ओके ना। O जो है, O कितना है, 3 है, यहाँ पर O कितना है, 3 है, नहीं सॉरी ये 3 नहीं होगा, आप देखो 3 2 6 होगा, ये 6 और ये कितना है, 2 इंटू O, तो 8 हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 8 है, क्या यहाँ पर भी 8 है, देख लेते हैं, 3 2 6 6 और 2 इंटू O 8, तो 6 + 2 8, तो ये दोनों सही है, ठीक है। अब Ca की बात आ रही है, कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, ये जो 2 है, अब ये ब्रैकेट है इसके ऊपर, तो ये 2 Ca के लिए नहीं है, Ca के लिए कुछ भी नहीं, Ca कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी Ca 1 है, तो Ca 1 हो गया, तो बैलेंस हो गई, ठीक है स्टूडेंट, काफी इजी है। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं ताकि आपको और पता चलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे NaOH, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, NaOH प्लस H2 है, SO4, ये 2 ऊपर लिखा है या नीचे लिखना चाहिए था, और ये Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको देखना है कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी बैलेंस्ड है या नहीं है, देख लेते हैं एक बार। सपोज Na है, मैं एक बार सारे लिख देता हूँ, O है, H है, S है, ठीक है, इन चारों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये मैं ऐसे कॉलम बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आता रहे। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, सो दिस इज प्रोडक्ट साइड, दिस इज रिएक्टेंट साइड। अब रिएक्टेंट में Na कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 लिख दो, यहाँ पर Na2 है, यहाँ 2 लिख दो। O में कितना है,
ओ यहाँ पर कितना और यहाँ पर कितना, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अब मैंने आपको बताया था ऑड नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर ऑड है, 1 है, इसको 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ 2 लगाया था क्योंकि 2 लगेगा, नहीं होके भी 2 लगेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 4, तो 6 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है। और यहाँ पर ओ कितना है 4 और यहाँ पर कितना, एक ही है, ये एक ही, तो हमेशा 2 लगेगा, उसको ऑड को इवन बनाना ही पड़ेगा मुझे। ये भी अगर मैं 2 लगाता हूँ अगर सपोज, तो ये 2 लगाया तो मैंने कितना हो जाएगा 2 इंटू ओ और 4 प्लस 2, ये 4 तो ऑलरेडी है और 2 इंटू ओ 2 6 हो गया, 4 प्लस 2 6। एच कितना है, एच यहाँ पर देखो ये एच है, ये एच इंटू 2 होगा, एच इंटू 2 2 हो गया और 2 यहाँ ऑलरेडी है तो 4 हो गया, क्योंकि एच के नीचे 2 है तो मतलब 2 एच 2 टाइम्स है। नाउ यहाँ पर 2 2 सा 4 हो गया, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब एस है, एस कितना बचा, एक एस यहाँ पे भी है, एक एस यहाँ पे भी है, तो दोनों 1 1 हो गए। तो आपको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर एन कितना था 2 लगाया था, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 लिखोगे और इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब आप बोलोगे मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया बच्चों, 2 इंटू एन ए करूंगा तो 2 सबके लिए मैंने आपको बताया था, ये 2 पूरा कॉलम है समझ लो, तो 2 एन ए के लिए भी, 2 ओ के लिए भी, 2 एच के लिए भी, तो इसलिए n टू 2 किया, तो 2 एन ए इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और इधर भी एन ए ट्वाइस है, तो दोनों बैलेंस हो गई, राइट। काफ़ी इजी बच्चों, आप इतना घबराओगे तो नहीं चलेगा, बहुत इजी है। 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ मैं आपके सामने, बहुत ही सिंपल वे में तरीके में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और सॉल्व करते हैं। अब जैसे NaCl है, NaCl है प्लस AgNO3, ठीक है, ये बना दी, ये है AgCl प्लस बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, छोटा करना पड़ेगा, तो ये बनेगा NaNO3, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों इसमें, NaNO3। अब बच्चों इसमें करना क्या, इसको बैलेंस करना है। देखो Na यहाँ पर 1 है, Na यहाँ पे 1 है, बैलेंस है। Cl यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पर भी 1 है, ये भी बैलेंस है। Ag यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Ag 1 है। N यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। O यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो नंबर ऑफ एटम एट द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम एट द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं। Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। Cl यहाँ पर 2 है, ये देखो बच्चों ये BaCl ऐसे लिखा है, BaCl2 है ये, एक्चुअली 12 नहीं है, BaCl2 प्लस H2SO4 will give BaSO4 प्लस HCl, राइट। तो ये है एक्चुअली। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये Cl यहाँ पर क्या है और यहाँ पर Cl देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ऑड को इवन बनाना बच्चों यहाँ 2 लगाना ही पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को वापस लिखूँ, BaCl2 प्लस H2SO4 will give you BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना ही पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया 2, ठीक है। अब देखो Ba यहाँ पर 1 है, Ba यहाँ पर 1 है, Cl2 है यहाँ पर, Cl यहाँ पे भी 2 हो गया और H भी 2 हो गया, ठीक है। H2 इंटू H2, यहाँ पे भी H2 है, S इधर एक ही है, इधर भी S एक ही है, O4 इधर भी है, O4 इधर भी है, तो हो गई बैलेंस, इजी। तो काफ़ी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके NCERT टेक्स्ट बुक में है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे काफ़ी इजीली हो जाएगा। प्लीज़ आपको इसमें बहुत ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब देखो एक काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको होमवर्क में करो। ये जो x और y है, देखो यहाँ पर क्या है, एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है। इस केमिकल इक्वेशन में आपको x की जगह कुछ नंबर लिखना है ताकि ये बैलेंस हो जाए, और y की जगह कुछ नंबर लिखना है ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए जो PDF बनाया, देखो बच्चों ये इसलिए बनाया ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाए, आप चैप्टर भी समझ जाओ, और आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो भी समझ में आ जाएगी। और ये PDF मैं आपको वैसे भी दे रहा हूँ, तो आपके पास ये अवेलेबल रहेगा। तो आपको बस ये है कि आपको मुझे हेल्प करने के लिए सिर्फ इतना सा करना है, आपको मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे ल्यूमिनरी अकेडमी की पेज भी है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी है। मेरे पेज के अंदर मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रखी है बच्चों। अगर आपको मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट करना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। यहाँ पर PDF में मेरा नंबर भी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ मेरा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
कुछ भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। बट अगर आप यूट्यूब से मुझे अप्रोच कर रहे हैं तो डू लेट मी नो दैट यू आर अ यूट्यूब, यू फॉलोड मी ऑन अ यूट्यूब एंड यू कॉन्टैक्टेड मी थ्रू यूट्यूब। ओके, सो ईजी रहता है थोड़ा। ओके, सो ये आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हुए हैं। काफ़ी इसमें से हमने सॉल्व भी कर लिए, जैसे ये वाला सॉल्व हो चुका है। ओके, बहुत सारे सॉल्व हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर से ही मैंने इसको टाइप करे हैं। तो ये जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पहले इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे CaOH, ओके, होल ट्वाइस प्लस CO2 विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। अब आप इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कैसे बैलेंस करना है। तो पहले आपको इसको वर्ड इक्वेशन को आपको इस सिंबॉलिक इक्वेशन में जाना पड़ेगा और फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पर भी मैंने और बहुत सारे क्वेश्चन से दे रखे हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करो बच्चों, बहुत काम आएगा, हेल्पफुल रहेगा और ये चैप्टर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बहुत तरह की होती है, ओके। जनरली अपन 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है वो फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप 2 प्रोडक्ट को कंबाइन करोगे तो एक सिंगल कंपोनेंट या सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन यू कंबाइन 2 reactants then it will form a 2 or more products, okay, or it can be 1 product also, it depends, okay। So first reaction इसके लिए ये जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, प्लस वाटर विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस, ये जो CaOH होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, ओके। तो अगर आपको याद है तो मैंने यूट्यूब पे कुछ दिन पहले ये इस पूरी इक्वेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था और इसके ऊपर मैंने आपको ये बताया था कैसे इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट रिलीज होती है बच्चों, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये बच्चों ये रिएक्शन के अंदर से हीट रिलीज हो रही है। तो मैंने आपको टेम्परेचर भी बताया था, मैंने टेम्परेचर भी वो थर्मिस्टो वाला मैंने थर्मोमीटर में आपको बताया भी था कैसे इसको हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और उससे पता चलता है कि कितनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। सो अब फर्स्ट रिएक्शन है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ओके। तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्लाइन भी बोलते हैं, इसका पूरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, केमिकल नेम है। और ये है क्विकलाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों की राइटिंग बहुत खूबसूरत है, तो आपको थोड़ा कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लेना कमेंट में, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्लाइम, हम इसको जब यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, हम इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। अब बच्चों देखो व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। व्हाइट वॉशिंग बेसिकली पहले जो जितने भी फोर्ट हुआ करते थे, जितने भी हमारे पास किले हैं, हमारे राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, आपने देखे होंगे, ओके, इन उदयपुर राजस्थान ऑल्सो, इन जयपुर ऑल्सो देयर आर सो मेनी फोर्ट्स। तो इन फोर्ट्स के अंदर क्या होता है बच्चों की पुराने जमाने में सीमेंट और जिप्सम नहीं होता था, तो इन फोर्ट्स के अंदर हम क्या करते थे, हम इसको यूज करते थे दैट इज दिस क्या बोलते हैं स्लेक्लाइम। स्लेक्लाइम से क्या होता है बच्चों, जब क्विकलाइम को अपन वाटर में मिलाते हैं तो स्लेक्लाइम बनता है। उस स्लेक्लाइम को हम क्या करते हैं, हम जितनी भी वॉल्स है उसके ऊपर हम उसको लगा देते हैं, ठीक है। अब उससे होता क्या है कि जैसे ही वो रिएक्ट करता है CO2 के साथ, क्योंकि CO2 तो प्रेजेंट है ही इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो जहाँ जाके हवा टकराएगी उस वॉल से, तो जितना टकराएगी उतना वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि जितने भी फोर्ट है उसमें आज भी हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी चमक भी क्या होता है, 1-2 दिन बाद सूखने के बाद आती है, बहुत ज़्यादा चमकता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर देता है वो वॉल को। इसलिए हमारे कितने भी फोर्ट है इतने हाइट पे बने हुए हैं, कभी भी ये गिरते नहीं है, ओके। और हमारे छोटे छोटे घर है जो यहाँ पर इतने घर बनाते हैं हम सलिया डाल के, वो भी गिर जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि पुराने ज़माने के लोग जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाते थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो आज भी इतनी मजबूत है और आज भी उतना ईजिली वो हम उसकी उतनी सफ़ेदी और जो हम ताजमहल है हम उसको देख पा रहे हैं, तो वो इसी वजह से बच्चों, ठीक है। तो और एक और चीज़ बच्चों, जब ये रिएक्शन है सेकेंड वाली, जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट करेंगे CO2 से, जब ये अपने आप हम नहीं रिएक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक वॉल से हवा टकराएगी तो ये रिएक्शन होगी, तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो फॉर
तो मार्बल का भी जो हम जमीन पे पत्थर लगते हैं उसका भी यही फॉर्मूला होता है, मार्बल के लिए भी ये सेम फॉर्मूला है। और इसमें से क्या होता है, जब वो टकराती है हवा तो H2O में रिलीज होती है। अभी जो मैंने फिजिकल स्टेट यूज करी, ये एक्वस है, मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, ये गैस की फॉर्म में, ये सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड की फॉर्म में पानी बाहर आता है। ओके, सो सम अदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बहुत सारे एग्जांपल है तो कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब हम बर्न करते हैं, मतलब कोयले को हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म CO2। अब ये ऑलरेडी बैलेंस है, देखो C एक है यहाँ पर भी C एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे बनता है, जब हम H2 को और O2 को मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा H2O। बट बेटा ऐसे नहीं बनता है कि आप ऑक्सीजन लेके आए या पानी लेके आए, दोनों को मिला दिया, ठीक है। इट रिक्वायर्ड सम एक्चुअली कुछ कंडीशंस होती है जिसके अकॉर्डिंग ये इजीली बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों गैसेस को जब यहाँ प्लस आएगा, जब इन दोनों को गैसेस को रिएक्ट कराएंगे तो इट विल फॉर्म पानी, ओके, H2O। अब ये जो केमिकल रिएक्शन जो बनती है बच्चों, जैसे पानी यहाँ का लेंगे हम, अमेरिका का लेंगे पानी, US का लेंगे, कनाडा का लेंगे, यूरोप से पानी लेंगे, पानी का इक्वेशन हमेशा सेम रहती है। तो इट डजंट चेंज वेदर यू गो टू एनी अदर प्लेस, यू विल ऑलवेज फाइंड द केमिकल फॉर्मेशन ऑफ वाटर as the combination of hydrogen and oxygen in the ratio of 2:, in the ratio, जो इनका रेशियो होता है, जैसे H2 होता है, ऑक्सीजन O होता है, ठीक है, तो इसका 2:16 होता है, तो 1:8 के रेशियो में डिवाइड होते हैं, मतलब कंबाइन होते हैं। तो इस रेशियो में आप इसको देख पाओगे हमेशा, कहीं पे भी पानी कहीं का भी हो, यू विल ऑलवेज सी द सेम फॉर्मूला एंड कंपाउंड, ओके, सो सेम कंपाउंड। सो यहाँ पर आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब जो नेचुरल गैस है दैट इज CH4। सो CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन, ये मीथेन गैस है, इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन गैस के रिस्पेक्ट में। तो जब इन दोनों को बर्न करेंगे तो बनेगा CO2 और H2, ठीक है। CO2 तो गैस रिलीज हो जाएगी और H2 भी गैस है, ये भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकलेगी, एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज होती है इसके अंदर, ओके। एंड लाइट भी आता है, तो लाइट भी आप लिख सकते हैं इसमें, लाइट भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कोल में भी आपके एनर्जी एंड लाइट आप लिख सकते हैं, एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, या हीट, आप एनर्जी की जगह आप हीट लिख दीजिए, हीट एंड लाइट आएगी यहाँ पर, राइट, इजी। अब ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो काफी इजी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, दिस रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ओके, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जब बनता है तब हीट भी रिलीज होती है। तो फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मैंने आपको अभी बताया, तो ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जितनी भी रिएक्शन ऊपर लिखी है सारी एक्सोथर्मिक है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम रेस्पायर करते हैं, ये इक्वेशन मैंने अभी बताई थी आपको, ये ग्लूकोज है, इसको O2 में मिक्स करेंगे तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म CO2 एंड H2O प्लस एनर्जी। तो ये तीनों चीज बनाएगा। तो ग्लूकोज जब हम जब खाना खाते हैं और जब हम ब्रीथ करते हैं तो रेस्पिरेशन शुरू होता है हमारी बॉडी में। वो जो रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से CO2 रिलीज होती है, मतलब हम जो उसको ब्रीथ आउट कर लेते हैं, और वाटर जो हम एक्सक्रीट कर लेते हैं या बॉडी में यूज आ जाता है। एंड एनर्जी जो है वो हम बॉडी को हम जो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं उसमें इस एनर्जी यूज आती है हमारी, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो टॉपिक्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बने हैं, 2-3 क्वेश्चन जो मेरे को यहाँ दिख रहे हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप प्लीज इसको ट्राई करो, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि आप इंटरेक्टिव वे में आप इसको पढ़ाई करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, डू लेट मी नो, उससे मैं आपको आंसर भी दूंगा, तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। एक बार घर पे बच्चों ट्राई करो, क्योंकि देखो बच्चों प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो मैथ्स में और साइंस में आपको, साइंस में लर्निंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स में तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के आप काम नहीं कर पाओगे, राइट।